ईसारो अता का पैकर है ऐ अंजुमने तहजीब लिसां तू सदफ़े वफा का। अय्युहा المستمعون الكرام، غزة اليوم تئن تحت صوت الظلم منذ سنين، والأمة الإسلامية واقفة موقف المتفرج السامت. فإلى متى يترك المظلوم وحيدا في ميدان الجهاد؟ ومتى تستيقظ الأمة لتنهد بواجبها؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكنه لا يوهب إلا لأمة قامت بحقه وتحركت لأجله. الآن ندعو إلى هذا المقام الأخ الطالب في المستوى الثالث من العربية محمد ثاقب ليسمعنا كلمة الحق ويحدي في القلوب معنى النصرة والصبر، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الناس، مما لا يخفى عليكم أنها هي قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى، ووضح الله تعالى في القرآن: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال أبو ذر الغفاري: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أذي في الأرض، وقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فهي الفضيلة للمسجد الأقصى. فأيها الناس، نحن مسلمون والمؤمنون، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإخواننا في فلسطين يقربون أنفسهم وأجسامهم وأموالهم وأولادهم للحرية المسجد الأقصى. والبلاد المسمى بإسرائيل يظلمون إخواننا ويقتلون أبناءها ويحينون نساءها. فيا للأسف نحن غافلون عنه، ولا تعاونهم ولا نساعدهم ولا نذكرهم في أدعيتنا ولا ندعو الله لغلبتهم على إسرائيل. والحال أن الله تعالى قال: إن الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إلى متى نحن ننام؟ وإلى متى نحن لا نستيقظ؟ وإلى متى نحن لا نصلي؟ وإلى متى نحن لا نزكي؟ وإلى متى نحن لا نصوم؟ وإلى متى لا نكرم الجيران؟ وإلى متى نحن نظلم على أنفسنا وعلى جيراننا وعلى إخواننا المسلمين؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فأخيرا نقدم الطلب إلى خدمتكم علينا أن ندعو السكان فلسطين وللعافية في الدنيا والآخرة لكل المسلمين والمؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم। अब मैं आप हजरात को उस माहौल की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ यह गुमान फैलाया जाता है कि इस्लाम गोया दकियानूसियत, तंग नजरी और कट्टर मिजाजी की तालीम देता है। सूफियत की दबीस चादर उड़ाकर अमली जिंदगी खुसूसन सियासत से किनारा कश होने का सबक देता है। इन्हीं बेबुनियाद एतराज का इल्मी व मुदल्लल रद्द पेश करने के लिए मैं निहायत एहतराम के साथ अजीज़म मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु को दावत खिताब देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मौसूफ का उन्वान है इस्लाम और उसका सियासी निज़ाम। Honorable judges and dear dignified friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to talk on a very important topic, the political system of Islam. Politics is an English word for siyasa in Arabic, which literally means to manage the things. The extraordinary magnificence of politics is indicated in the dozen of ayah of the glorious Quran. For instance, Surah Al-Baqarah chapter number 2, ayah number 219, An-Nisa ayah number 54 and 58, Al-Ma'idah ayah number 44, 45, 47 and 50, and so on. Identical is its significance in pieces of ahadith. Dear far-sighted friends, we already know that Islam is a complete system of life, and politics is an integral part of our collective life. Just as Islam teaches us how to perform salah, how to pay zakah, how to keep fast, and how to undertake hajj, so it teaches us how to form a government and how to raise a state. Dear highly educated friends, man is the caliph of Allah on the earth. The glorious Quran says in chapter number 2 and verse number 30, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة. I am going to place a caliph on the earth. It means Allah is the sovereign and man is his caliph in a political sense. Khilafah means the implementation of the will of Allah on the earth. Even the glorious Quran indicated in chapter number 22, ayah number 41. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. If you give them authority in the land, they will establish salah, pay zakah, enjoy good and forbid the wrong. Dear intellectuals, Islam teaches us to run a state, to make legislation, and to take decision through consultation. The glorious Quran says in chapter number 3, ayah number 159 says, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Consult them in the conduct of affairs. This is an important part of the political Islamic system. There is no scope for despotism or dictatorship in Islam. Please listen again. There is no scope for despotism or dictatorship in Islam. The Quran and the Sunnah will be the basis of the Islamic political system. Dear audience, the Islamic political system makes the ruler responsible to Allah. A ruler is selected by the people to exercise their power on their behalf. A ruler has to work for the welfare of society. A ruler has to work for the welfare of society. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died when he established a state, namely Medina.
A ruler will appear before Allah and account for his action in a hadith. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi." A ruler has to look after his people and he will be questioned about them. Dear intellectuals, in the Islamic political system, the judiciary is independent of the executive. The head of the state or any government minister, prime minister or chief minister could be called to the court if necessary. They would be treated no differently from other citizens. The glorious Quran has many injunctions about justice. The glorious Quran says in chapter number 5 and ayah number 8, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Do justice, that is nearer to pity. One of the main functions of the Islamic State is to ensure justice for all citizens. In conclusion, I want to say that it is the responsibility of the Islamic State to work for the welfare of society. Muslim and non-Muslim alike, they shall have freedom of belief, freedom of thought and freedom of religion. May Allah accept us to be good politicians and to do all good work for mankind. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. कि मंजिले मकसूद की जानिब मेरे नाजुक कदम, मंजिले मकसूद की जानिब मेरे नाजुक कदम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आसरा देना मुझे। गिर पड़ूं तो हौसला अफजाई करना तुम मेरी, चल पड़ूं तो आगे बढ़ने की दुआ देना मुझे। मोहतरम हजरात, बिहम्दिल्लाह हमने अपने सफर की 2 मंजिलें तय कर ली हैं। अब हमारा ये सफर, अब हमारा ये कारवां अपने सफर के 3रे मरहले में दाखिल हो चुका है। इंशाअल्लाह हमारा ये 3रे मरहले का सफर भी कामयाबी व कामरानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, क्योंकि इस बज़्म को कामयाबी के हमकिनार बनाने वाले आप जैसे सामईन हैं, जो पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए आपके इस्तक़बाल के लिए मेरी ज़बान पे ये अशआर मचल रहे हैं। तुम जो आए हो तो इस ज़िस्त की लज्जत पाकर, तुम जो आए हो तो इस ज़िस्त की लज्जत पाकर, हमने आलम को सवारा है तुम्हारी खातिर। आज हमने महो अंजुम को भी दावत दी है, आसमानों से उतारा है तुम्हारी खातिर। लालाओ गुल को, बहारों को, समंजारों को, लालाओ गुल को, बहारों को, समंजारों को, दीदाओ दिल ने पुकारा है तुम्हारी खातिर। फिर यहाँ शीशो सागर से चरागा होगा, फिर यहाँ शीशो सागर से चरागा होगा, फिर कोई अंजुमन आ रहा है तुम्हारी खातिर। मैं खिताब के लिए सबसे पहले मुसाहिम की हैसियत से अजीज़म मोहम्मद हसन फारसी अव्वल को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और मुकर्ररे उन्वान पर तकरीर पेश करें। मुसाहिम की तकरीर का उन्वान है अज़मते सहाबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाह, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मुअक़्क़र असातिज़ाए किराम और मेहमानाए निज़ाम, आज के इस बावक़ार अंजुमन तहज़ीबुल लिसान के मुसाबक़ाए खिताबत में मेरी तकरीर का उन्वान अज़मते सहाबा है। सहाबी व खुश नसीब और इक़बालमंद इंसान है जिसको हालत ईमान में ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यिदुल मुरसलीन, मुहसिन आज़म, हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हुआ हो, और उसी हालत ईमान में
इस दुनिया से रुखसत हुआ हो, यही वो नेक बख्त इंसान है जो क़यामत तक के लिए इंदल्लाह मुमताज़ीन व मकबूलीन में शुमार होगा। उसका कौलो किरदार, अखलाक व अमाल मुस्तनद व मुअतबर होगा। वो हर किस्म की लानत व मलामत और तनकीद व तबसरा से बुलंद होगा, क्योंकि उसने सरापाए रसूल को देखा है, उसने जिसमें रसूल की खुशबू सूंघी है, उसने लबे रसूल को हरकत करते और उससे अल्फाज व मानी के मोती बिखरते देखा है। वह आम इंसान नहीं बल्कि मियार हक़ है, शिआर हक़ है। अस्हाब मुस्तफ़ा फ़िदाकारा ने मुजतबा अपने ईमान व अक़ीदे में, इखलास व लिल्लाहियत में, अपने अमाल व किरदार में, अपने आदत व अतवार में, अपने अफ़आल व गुफ्तार में इस्लाम का तारुफ़ है, दीन की अलामत है, सीरत रसूलुल्लाह की तफसीर है, हक़ का मियार है, हर अमल में शिआर है, अस्हाब दी वक़ार हैं, वह शरीअत की पहचान, तरीक़त की जान, इस्लाम की शान, हक़ की आन है। बल्कि मैं तो कहूँगा और सच कहूँगा कि अगर इखलास व लिल्लाहियत, खौफ व खशियत, सलाह व तक़वा, अदल व इंसाफ और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को जमा करके एक शक्ल दी जाए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की सूरत वजूद में आएगी। हाज़िरीन किराम, मौज़ूए गुफ्तगू चूँकि अज़मत सहाबा है, इसलिए बजाय इसके कि अपनी तरफ से कुछ कहूँ, अपने तौर पर तारीफ़ व तौसीफ़ और मदह सराई करूँ, तो कहने वाले कह सकते हैं कि मुबालगा आराई है, लन तरानी और ज़ुबान दराजी है। इसलिए क्यों न हम उस ज़ाते वाजिबुल वजूद के कलाम में देखें, खुद रब्बुल आलमीन अपने महबूब की अज़मत शान और रिफ़अत मकान को बयान करते हैं, उनकी महबूबियत मकबूलियत से आगाह करते हैं। जब असहाब रसूल के ईमान व तक़वा और दिली कैफियत की बात आती है, उनकी सलीक़ा मंदी और दरबार रिसालत में बाअदब हाज़री की बात आती है, तो कुरान कहता है, पारा नंबर 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और जब शब बेदारी, इताअत गुज़ारी, शिर्क व कुफ्र से नफ़रत, ईमान वालों से उल्फ़त व मोहब्बत का मामला दरपेश होता है, तो कुरान कहता है, पारा नंबर 26 सूरह फ़तह आयत नंबर 29, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अआ सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और जब सिफ़ात हमीदा और खसाइल जमीला का तज़किरा होता है, तो कुरान कहता है, ये वो पाकीज़ा गिरोह और बुलंद सिफ़ात जमाअत है जिसके औसाफ कुरान ही में नहीं बल्कि तौरात व इंजील में भी बताए गए। और ज़ालिका मसलुहुम फित तौरा व मसलुहुम फिल इंजील से तारुफ होता है, ताकि यहूद व नसारा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवालों की ताकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवालों की हर अदा को पहले से जान ले। और जब उस पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा किरदार, पाकीज़ा अमले जमाअत को अपनी आँखों से चलते फिरते देखें, तो जान ले जिस नबी मुंतज़र की बशारत हज़रत ईसा व मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। और नजात की राह यही है कि जामिअतुर रसूल और मदरसतुन नबी के तालिब इल्म बनकर अस्हाब रसूल बन जाएं। हाज़िरीन किराम, जब सहाबा किराम के दीन हक़ पर मर मिटने और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा होने का तज़किरा होता है, तो कुरान कहता है कि खुशकसाली व तंग दस्ती में रसूलुल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले और राह हक़ में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अस्हाब मुस्तफ़ा हैं। उन्हीं के लिए खुलूद व जन्नत की बशारत और रहमत व मग़फ़िरत की सौगात है। कुरान कहता है, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 88-89, लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा
ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। और जब दीन पर इस्तिक़ामत, ईमान में सलाबत और राह हक़ में पामर्दी और इस्तिक़लाल का तज़किरा होता है तो कुरान कहता है, पारा नंबर 26 सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 13, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की आयत का नक्शा उभरता है। और महान बात बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु याद आते हैं। मक्के की संगलाख गलियों में घिसटते हुए दिखाई देते हैं। रेगिस्तान अरब के तपे सहरा में गरम रेत पर लेटे हुए नजर आते हैं। सीने पर वज़नी चट्टान है मगर ज़बान पर विर्द अहद अहद है। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु याद आते हैं, भड़कते शोले पर लिटाए गए हैं, आग जिल्द को जला रही है, ज़बान पर कलमाए शहादत जारी है। अम्मार और यासीर, सुहैब और सुमैया याद आते हैं। दुआफ़ाए मक्का याद आते हैं जिन पर कुरैश की दरंदगी टूट रही है। मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबरो सितम की तेज़ व तुंद आंधियाँ भी उनके पाए इस्तिक़ामत में तसलसल पैदा करने से कासिर रहे। मुखालिफत व अदावत का सैले रवा भी उनके कदमों को न उखाड़ सका। वो मैं तौहीद से सरशार थे। एक तरफ जुल्म व सियादती और नफरत व अदावत के भड़कते शोले हैं तो दूसरी तरफ ज़बान रिसालत से अजर अज़ीम की बशारत और जन्नत की खुशखबरी है। इरशाद होता है, तूबा लक या बिलाल हनी अल्लक या बिलाल, जन्नत तेरी मुश्ताक है। तूबा लक या अम्मार हनी अल्लक या अम्मार, जन्नत तेरी खास्तगार है। तूबा लक या खब्बाब हनी अल्लक या खब्बाब, जन्नत तेरी आरज़ूमंद है। यही दावे और बशारतें उनका सरमाए हयात थी। रसूलुल्लाह की ज़ात सहारा थी, दिलासा थी। कुरान करीम दस्तूर था और ये नुफूसे कुदसिया मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूला के असली मिस्दाक थे। कुरान करीम के बराहे रास्त मुखातबीन अव्वलीन थे। खुलासा ये है कि असहाब मुस्तफ़ा पर शरीयत नाज करती है, इबादत नाज करती है। उनके तक़वा पर खुद अल्लाह मोहर लगाता है, उनकी इबादत पर रसूलुल्लाह तस्दीक फरमाते हैं। सहाबा ने मोहब्बत रसूल और इश्क़ इलाही की जो मिसाल कायम की है, सहाबा ने मोहब्बत रसूल और इश्क़ इलाही की जो मिसाल कायम की है उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। अल-गर्ज़ जमाअत सहाबा से बेहतर जमाअत न पहले वजूद में आई थी और न क़यामत तक ऐसे वजूद का अफराद होगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। ये जितने असहाब मुस्तफ़ा हैं, ये जितने असहाब मुस्तफ़ा हैं सब अहले ईमान के मुक़्तदा हैं। ये वो सर चश्माए हुदा हैं जिनसे सब फैज़ पा रहे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसाहिम नंबर 2 की हैसियत से मोहम्मद माज दर्जा फ़ारसी को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। मौसूफ़ की तकरीर का उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली पहलू है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाज़रीन किराम, जब से इंसान इस कारखानाए हस्ती में आया है उस वक्त से आज तक न मालूम कितनी अजीम शख्सियतें दुनिया के स्टेज पर नमूदार हुई हैं, लेकिन उन सब के मुर्क़ हयात का अमली पहलू बहुत रोशन नहीं है। उसके बरअक्स मारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही बाब सबसे ज़्यादा रोशन व ताबा है।
और एक ऐसा मनारे नूर है जिससे हर जगह और हमा वक्त रोशनी फूट रही है। और यकीनन एक इंसानी कामिल की अमली सीरत ऐसी ही बदकामिल और ताबनाक होनी चाहिए। कान लगा कर सुने, कुरान बोल रहा है, इन्ना लकल अज्रुन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलिकिन अज़ीम। कुरान की ज़बान सुने, दाई अव्वल की सदाएं गूंज रही है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। इस सदाए के बुलंद करने का हक उसको था, क्योंकि वो जो कुछ कहता था सबसे पहले खुद अमल करके दिखाया। कुरान पाक इस्लाम का अहकाम का मजमुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की अमली तफसीर है। हज़रात चंद सहाबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और मामूलात बयान फरमाए। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा जवाब में यही कहती, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कौन खुल्क़ुहु कुरान। आपकी सीरत का सबसे पहलू ये है, आपने बहैसियत एक इंसान, आप एक पैगंबर को अपने पैरुओं को जो नसीहत फरमाए उस पर सबसे पहले खुद अमल करके दिखाया। आपने लोगों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तमाम मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, मगर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 वक्त की नमाज पढ़ते। लेकिन कई दफे कुफ्फार नमाज की हालत में आप पर हमला और हुए, लेकिन फिर भी आप खुदा की याद से बाज न आए। ये था खुदा की इबादत गुजारी और याद का अमली नमूना। आपने रोजे का हुक्म दिया तो तमाम मुसलमान को साल में 1 माह, खुद का कोई हफ्ता, कोई महीना रोजे से खाली न होता। ज़कात का हुक्म दिया, खुद का ये हाल था कि जब तक आए हुए माले गनीमत को तकसीम न कर ले, बिस्तर पे नींद न आती। फरमाया करते हैं, इन्नमा अना कासिमुन व क़ाज़िउन वल्लाहु युअती। दोस्तों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशनुमा अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये आपका तर्ज अमल था, आपका मामूल था। आपने ज़ोदो क़नात की तालीम दी, लेकिन उस राह का तर्ज अमल क्या था? बकौल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मगर 2 वक्त भी आपको खाना नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, इशार के वाज कहने वाले को तुमने बहुत देखा होगा, मगर क्या किसी इशार के वाज सहीफ़े हयात में उसकी मिसाल भी है? उसकी मिसाल मदीने के गलियों में मिलेगी। खुदा पर एतमाद और तवक्कुल और भरोसा की शान देखना हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो। कुरैश मक्का ने आपके साथ क्या न क्या किया, लेकिन जब आपको अल्लाह ने सरजमीन मक्का पर फतह याब किया, हरम के शहर में जहां आपको गालियां दी गई, आप पर नजासत डाले गए, आपको कत्ल की तजवीज़ मंजूर हुई, वहीं कुरैश के तमाम सरदार आपके मफ्तुआ न खड़े थे। उनमें वो भी हैं जो आपको गालियां दिया करते थे, वो भी हैं जो आपको झुटलाया करते थे, वो भी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूरी किया करते थे, वो भी हैं जो आपके ऊपर पत्थर बरसाए थे, आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, आपके ऊपर तलवार चलाए थे, आपके अजीजों का खून नाहक किया था, उनके सीने चाक किए थे, उनके दिल के जिगर को टुकड़े किए थे। आज वो भी है जो गरीब बेकस और मुसलमानों को जलती हुई रेत पे लेटाते और दहकते हुए कोयले से उनके जिस्म को दागते और नेज़े की यानी से उनके जिस्म को चलने किए। आज ये सब मुजरिम सर झुकाए हुए खड़े हैं, 10,000 खून आशाम तलवारें नियाम से बाहर इशारे के मुंतजिर हैं। इशारा हो बरसों की प्यास बुझा ले, दुश्मनों के खून में नहा ले, लेकिन दफअतन ज़बान मुबारक खुलती है। सवाल होता है, कुरैश बताओ आज मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं? इरशाद जवाब मिलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू हमारा शरीफ भाई और शरीफ भतीजा है। इरशाद होता है, आज मैं वही कहता हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जालिम भाइयों से कहा था कि ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका। यह था आपका अमली नमूना जिसने दुनिया के सामने पेश किया, और इस आईना के सामने जब खड़ा होता है तो नंगा मालूम होता है। यह था आपका अमली नमूना या अमली पहलुआ आपने दुनिया के सामने पेश किया। बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौधा उन्हीं की लगाई हुई है। वाखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
मुसाहिब नंबर 3 की हैसियत से मोहम्मद अतहर अरबी अव्वल को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं। मौसूफ की तकरीर का उन्वान इल्हाद व बेदीनी का तूफ़ान बलाखेज़ और मुस्लिम नौजवान है। हज़रत गिरामी, ये मुसाहिब नंबर 3 है, इसके बाद मुसाहिब नंबर 4 आएगा और उसके बाद बड़ा ही मालूमाती मुकालमा पेश किया जाएगा। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सूरह कहफ आयत नंबर 13। मुजाहिदों की हमीयत के पासदार हो तुम, मुजाहिदों की हमीयत के पासदार हो तुम, खुदा का शुक्र है टीपू की यादगार हो तुम। चलो कि गर्दिश हालात रुक न जाए कहीं, चलो कि गर्दिश हालात रुक न जाए कहीं, कदम उठाओ कि तकदीर रोजगार हो तुम। लगाओ ज़रब ज़माने की बेसबाती पर, लगाओ ज़रब ज़माने की बेसबाती पर, उठाओ तेग की मेमार नौबहार हो तुम। हज़रत सदर मुहतरम मुशफ़िक़ व मुकर्रम असातिज़े कराम, मेहमानान अज़ाम और हाज़रीन मजलिस, आज के इन नाजुक हालात में मजहब इस्लाम पर चौतरफा हमला हो रहा है। बड़े बड़े फितने जहन्नम के शोलों के मानंद भड़क रहे हैं। किस्म किस्म के ईमान सोज, इस्लाम सोज, अखलाक सोज और इंसानियत सोच फितने उभर रहे हैं। मादियत की लहरें, इल्हाद व बेदीनी के तूफान और कौम परस्ती की आंधियां नबूवत मुहम्मदी से आके मिलाने को तैयार हैं। मुसैलमा किज़्ज़ाब नए रूप धार कर नबूवत मुहम्मदी को चैलेंज कर रहा है। इस्लामी सरमाया पर डाका डाला जा रहा है। इस्लामी किलों में शिगाफ और दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उम्मत इंटरनेट का सहारा लेकर आलमी सतह पर बेहयाई, बदकारी, फहाश और उर्यानियत को फरोग दिया जा रहा है और अफसोस कि दुनिया उस शोलों में जलकर खाकिस्तर हो रही है। उम्मत मुहम्मदिया का वो नौजवान जो पहले फने सिपाहीगिरी व तेज जनी का दिलदादा था, आज रक्स व सुरूद के फन में कमाल हासिल कर रहा है। वो नौजवान जो पहले खतर पसंदी और मुहिम जोई का कायल था, अब खैर व आफियत और ऐसो इज्जत की जिद्दोजहद कर रहा है। वो नौजवान जो पहले संगलाख वादियों को अपने कदमों से रोजा करता था, अब तफरीह गाहों और पार्कों के चक्कर काट रहा है। यही नौजवान की पहले सोकचा चट्टानों और वसरनाक घाटियों में सो जाया करता था, अब नर्मो गरम बिस्तरों, उदास कालीनों और मखमली लहाफों का मुतलाशी है। यही नौजवान की पहले तलवारों की चमक जिसके दिलों को मसरूर करती थी, अब नर्मो नाजुक होठों के तबस्सुम से उसकी जान में जान आती है। यही नौजवान की जो पहले तलवारों, तीरों, खंजरों और नेज़ों से खेलने का आदी था, अब वो जुल्फों से खेलने का आदी बन चुका है। यही नौजवान की पहले जिनकी निगाहों में मैदान कारज़ार का मंजर समाया होता था, अब उनकी निगाहों में फिल्मी तस्वीरों के मनाजिर रक्स कर रहे हैं। उसी का रोना रोते हुए इकबाल मरहूम ने कहा था कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी। लहू मुझको रुलाती है जवानी की आसानी। इमारत क्या शिकवे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, इमारत क्या शिकवे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल। नज़ोरे हैदरी तुझमें न इस्तिग़नाए सलमानी। कुछ नौजवान वो भी थे जिनके ईमान की पुख्तगी, बुलंद हिम्मती व आला किरदारी, हक गोई व बहादुरी की मिसालें खुद खालिक के कायनात बयान करता है और अपने कलामे लारे में तज़किरा खैर करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा।
एक नौजवान वो भी था कि अपनी ख्वाहिशात से लापरवाह होकर जब जंग में पहुंचता तो गसील मलाइका का तमगा हासिल करता। एक नौजवान वो भी था कि जवानी की उम्र में शहर शहर और करिया करिया फतेह करते हुए जब सिंध पहुंचता तो मगलूब कौम उससे नफरत के बजाय उसे अपनी आंखों पर बिठाती है। मगर सोच वो नौजवान जो कभी बेबाकी शुजाअत इफ्फत और इस्मत और अज़्म हौसला से इबारत था, आज ताउस और रुबाब ऐसे सरमस्ती और आराम और राहत पर फरेबता है। अलगर्ज आज का मुस्लिम नौजवान इल्हाद और बेदीनी के तूफान और कौम परस्ती की इल्हाद और बेदीनी के तूफान बेलाखेज में फंसा हुआ है। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के धड़कते दिलों, ए कौम के रगों के लहू, ए इस्लाम के सिपाहियों, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि उठो और अपने अंदर पाकीज़ा जज्बात की गर्मी, खुलूस की चाशनी, रब्बानियत का जलाल और मोहब्बत की तपिश और अज़ाइम में बुलंदी पैदा करो। और हाँ, तुम्हारी निगाहों के सामने सिद्दीक़ अकबर का जलाल ईमानी हो, उमर की हिकमत व दानाई हो, उस्मान के हया व पाक दामनी हो, अली की फतूवत व पामर्दी हो, हमजा की शुजाअत व बसालत हो, अबू ज़र का फ़क्र व इस्तिग़ना हो, सलमान का सिद्क़ व सफ़ा हो, इब्न मसऊद की मारिफत आ गई हो, खुबैब का जान शहादत व जाज़िबारी हो, बिलाल की लिल्लाहियत व वारस्तगी हो, और मुसअब की हकीमाना दावती सरगर्मी हो, और ख़ानदान यासिर की सब्र व शकीबाई हो। अलगर्ज उमूमी तौर पर सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इनकलाबी उठान और बसीरत अफरोज़ी का जलवा हो, ताकि एक मिसाली मुसलमान की हैसियत से तुम्हारा वजूद बकाए आलम का ज़ामिन बन जाए। और हाँ, कर मुअत्तर फिर जहाँ को खुशबुए तौहीद से, कर मुअत्तर फिर जहाँ को खुशबुए तौहीद से, मस्त कर कौनो मका को नग़्मे जावेद से। कौम के गजूर नौजवानों, खुदारा इस जवानी को गनीमत जानो, क्योंकि आज जिस ताकत पर तुम्हें नाज है, जिस पर तुम इतराते हो, जिसके तुम दिलदादा हो, वो कल खत्म हो जाएंगे, आजा जवाब दे जाएंगे, उससे ज़ाइल हो जाएगा। इसलिए पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, इग़तनिम शबाबक क़ब्ल हरमिक पर अमल पैरा हो जाओ। जवानी के एतात अल्लाह को बहुत पसंद है। जो बंदा अपनी जवानी को दीन के लिए तज देता है वो चाहे अर्श का मुस्तहिक हो जाता है, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेव ए पैगम्बरी, दर जवानी तौबा करदन शेव ए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शब्द परहेजगार। उम्मत के धड़कते दिलों, आखिर में अब एक मरतबा फिर शायर मसरी इकबाल मरहूम की इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंगी के हिस्सा, उठाना शीशा गरांगी के हिस्सा, सिफाल हिंद से मीना जाम पैदा कर। कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको अपनी मर्ज़ियात पर चलने और मनहियात से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब चौथे मुसाहिम की हैसियत से फैयाज अहमद अरबी सोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाए। मौसूफ की तकरीर का उन्वान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अग़यार पर रहमो करम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असल से कुदरत की यही दस्तूर रहा है कि जब सदाकत व अमानत का दरख्त मुरझाने लगता है, आँखों तो मोहब्बत के रंगीन वरक़ बिखरने लगते हैं, अदालत का बाग यूरान होने लगता है, और खुदा के कलमे हक़ व सिद्क़ का शजराए तूबा बेबर को बार हो जाता है।
तो उस वक्त रूह इंसान चीखती है कि ऐ खुदा रहम फरमा, करम फरमा। उस साहो बका और चीखो पुकार से रहमत खुदावंदी जोश में आती है और रहम राहिमीन कायनात इंसानियत पर रहम करम का एक इनकलाब बापा कर देता है। आलमी इंसानियत के फजाए रूहानी का एक ऐसा ही अजीम इनकलाब अरब के वादी में रूनुमा हुआ, जिसने सारे जहां के रेगिस्तानों को सरसब्जी और शदाबी की बशारत सुनाई। यही वो खुदा का हबीब एहसास के माह ताबा है, जिसने तौहीद इलाही की चमकदार से कुफरिस्तान को जगमगा दिया। सारी दुनिया पर उसकी रहमतें छा गई, और क्यों नहीं छाती जबकि रब्बुल आलमीन ने इसे रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। कुरान ने साफ अंदाज में कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरात गिरामी, इस करगाए आलम में जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, सब के सब अखलाक हसना और सिफात आलिया के पैकर थे। दुनिया के सारे मजाहिब के बुनियादी अखलाक पर है। जितने भी पैगंबर और मुसले आए, सब ने यही तालीम दी कि सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है। लेकिन दीगर अंबिया मुसलिहीन के बिल मुकाबिल इस बाब में भी पैगंबर आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत आरफा और बुलंद तर है। खुद कुरान ने इसकी शहादत दी है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इसी पर बस नहीं, बल्कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस का एक अज़ीम बाब है, जहां आकर आपकी जिंदगी तमाम अंबिया मुसलिहीन से बिल्कुल मुमताज हो जाती है। महतरम सामने इकराम, जहल और तअस्सुब ने हमेशा ऐलान हकीकत और एतराफ़ सदाकत की राह रोकना चाहा, मगर पैगंबर आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम रअफ़त और गुस्सर के सामने उसने भी जबीन अक़ीदत खम कर दिया। और क्यों नहीं करता, जबकि तारीख ने ऐलान किया है, ज़बान ने शहादत दी है, जाने दुश्मनों ने भी गवाही दी है। अबू जहल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, मगर कैसर रोम के दरबार में रहम करम की गवाही देता है। सुराक़ा व जोशम 100 ऊँट के लालच में मोहम्मद का कातिल बनकर घोड़ा दौड़ाया था, आपने इसे संदे अमान दे दी। हिंदा जिसने आपके चचा का नाक काट कर आपको टरपाया था, आपने इसे माफ कर दिया। लोगों, मैं कहां तक शुमार कराऊं? जाओ तारीख के निगाहों और आसमान के तारों से पूछो, अरब के रज़ारों से पूछो, अरब के सहराओं से पूछो, सहने मक्का से पूछो, उम्मुल कुरा के जरों से पूछो, गुस्ताखान रसूल और दुश्मनान इस्लाम से भी पूछो। सब के सब यही कहेंगे कि ताजदार मदीना ने फातिह बनकर भी और ग़ियारत रहम करम किया है, हुक्मरां बनकर भी दुश्मन सहाफ़त और गुस्सर का मामला किया है, गालियां सुनकर भी दुआओं का गुलदस्ता पेश किया है, जख्म खाकर भी दुआएं हिदायत दी है। तारीख शायद है, सीरत की किताबें गवाह है, ज़कीर अहदीस लबकुशा है कि आपने कभी किसी जानी दुश्मन और कातिलाना हमला करने वालों से भी इंतकाम नहीं लिया। ऐसी बात नहीं कि आप में इंतकाम की ताकत नहीं थी, दुश्मन आपके कब्जा में था, शमशीर स्नान मौजूद थे। शहनशाहों और हुक्मरानों का दस्तूर भी यही था कि जानी दुश्मन से बदला लिया जाए, मगर कुर्बान जाए उस आका नामदार मदीना के ताजदार पर कि उन्होंने ऐसे मौका पर रहम करम का ऐलान किया कि दुनिया के दूसरे कायदीन अक़वाम ने ऐसे मौका पर शमशीर स्नान की झंकारों से फिजा में शोर बर्पा कर दिया था, घोड़े के टापों से दुश्मनों के सीनों को रोंद दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इनफरादी तौर पर दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए बहुत सारे मौके आए, मगर इंतकाम के सबसे अहम मौका फतेह मक्का की तारीख थी। यही वो मक्का था जिसके बाशिंदों की शकावत कल्बी ने फर्जंदान इस्लाम
और पैगंबर इस्लाम पर अरसा हयात तंग कर दिया था, जिनके चीरा दस्तियों को तसलसल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना पर मजबूर किया था। आज इसी वादी मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह और ताजदार मदीना बनकर आए थे। सियान हरम में तमाम गुस्ताखान रिसालत और दुश्मनान इस्लाम का मजमा था। हर जालिम मजलूम के दस्ते कुदरत में था, हर कातिल मकतूल के वर्षा के कब्जे तसरुफ में था। हजरत सऊद अस्कर तरंग और फौजी धुन में अल यौम यौमुल मलहमा के तराने गा रहे थे कि आज इंतकाम का दिन है, आज तुम्हारे मजालिम का बदला लिया जाएगा। मगर कुर्बान जाए उस आके नमदार मदीना के रहम करम पर कि जिसने अल यौम यौमुल मलहमा के जवाब में फरमा नहीं नहीं, आज तआफु दरगुजर का दिन है। अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो रहम करम का दिन है। हम तो रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, हम इंसानियत को आबाद करने आए हैं। ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंसारों लश्कर इस्लाम के जियालियों ने शहंशाह दो आलम को, उन आदा इस्लाम को खलनाक मजालिम और काले करतूतों को याद दिलाया। या रसूलुल्लाह, इन्हीं दरिंदों ने बिलाल हबशी के सीने में पत्थर कतर पाया था। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, इन्हीं दरिंदों ने, इन्हीं बदबख्तों ने सुमैया को शर्मनाक तरीके से शहीद किया था। या रसूलुल्लाह, ये वही हिंदा है जिसने आपके चचा के कलेजा चबाया था, अन्ना काट के गले का हार बनाया था। या रसूलुल्लाह, ये वही गुस्ताखों की जमात है जिससे बहालत नमाज आपकी गर्दन पे गलादत डाली थी। या रसूलुल्लाह, ये वही है जिन्होंने आपको पागल, दीवाना, मजनू और साहिर कहा था। या रसूलुल्लाह, ये वही है जिन्होंने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था और आपके खून के प्यासे थे। मेरे दोस्तों, ऐसे पुरजोश सिपाहियों के सिपा सलार आका नामदार मदीना के ताजदार को तो और ज्यादा भड़कना चाहिए और कुहे आतिश फशा बनकर खैर आदा को सिर सबर करना चाहिए। मगर लाखे जाने कुर्बान हो आपके रहमत लिल आलमीन पर कि आपने फरमाया ला तस्रिबा अलैकुमुल यौम कहकर माफी का नमूना अपने जानी दुश्मनों का अता किया। मुहतरम सामिन इकराम, सीरत के सिफहात पे चंद नहीं बेशुमार वाक़ियात नक्शे और रहम करम का हर वाक़िया तारीख के औराक में आबे सर से लिखने के काबिल है। इसलिए हम फख्र से कहते हैं आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, कि आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, कोई आए न मगर रहमत आलम बनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाहिम नंबर 5 की हैसियत से असदुल्ला नासिर अरबी दोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ। मौसूफ की तकरीर का उन्वान मुसलमानों के खिलाफ सलेबी व सैहोनी साजिशें हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिट चुका है आज मिल्लत की खिलाफत का निशान, मुद्दतों महकूम था जिसका ये सारा खाकदां। आलम इस्लाम पर है कब्ज़े नसरानिया, खाक आसा हो रही है शौकत इस्लामिया। जा चुके सब मुल्क जिनसे नाम था इस्लाम का, कौम मेरी तुझको अब भी फिक्र है सूदो ज़या। फतह मिलती है अगर हो जोश इबरत उस्तवार, मिट नहीं सकता बातिल से सदाकत का शियार। मुहतरम मुकर्रम असातिज़ा कराम और रफ़क़ाए इज़ाम,
आज की इस कायनात अर्दी पर तारीख़ इस्लाम की 14 सदियाँ गुजर गईं, लेकिन अभी तक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली सलीबी और सहीयूनी साजिशों का सिलसिला ख़त्म न हो सका। इन साजिशों में ज़्यादती तो हुई लेकिन कमी न हो सकी। इन साजिशों में ज़्यादती तो हुई लेकिन कमी न हो सकी। इन साजिशों में तरक्की तो हुई लेकिन तनज़्ज़ुली न हो सकी। इन साजिशों में सख्ती तो आई लेकिन नरमी ना आ सकी। इन साजिशों में शिद्दत तो आई लेकिन खिफ़त ना आ सकी। 16वीं सदी ईस्वी तक यहूद व नसारा तन्हा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रचते रहे, लेकिन जब 17वीं सदी ईस्वी में यहूद ने ईसाइयों के मजहबी मरकज़ पापाइयत को अपनी साजिश का निशाना बनाया और ईसाइयों को मजहब से बेदार करके इल्हाद व ज़िंदगा के गार में ढकेल कर उन्हें अपना हमनवा बना लिया, तो अब यहूद व नसारा दोनों मुत्तहिद होकर मैदान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गए। सलीबियों ने अपनी अस्करी और मिशनरी क़ुव्वतों के ज़रिए मुसलमानों की मादी ताकतों को तबाह बर्बाद किया, तो सहीयूनियों ने अपने खुफिया मंसूबों के जरिए मुसलमानों की रूहानी ताकतों पर हमला किया और उन पर ज़हनी फिक्री अलगार की। चुनांचे लॉर्ड मैकाले ने बर्रे सगीर में फिरंगी निज़ाम तालीम के इदारे कायम किए और मुसलमानों के ज़हन व अफ़कार और तहज़ीब व अखलाक में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि इन इदारों से निकलने वाले नाम के तो मुसलमान होते लेकिन ज़हन व अफ़कार के एतबार से अंग्रेज़। अमेरिका के मशहूर जिनसी रिसाले पले बुआए और लंदन के जिनसी रिसालों में बरहना लड़कियों की तस्वीरों को कुरान करीम की आयत के पारों में कई बार देखा गया। बेल्जियम के यहूदी दुकानों पर सामान के पैकिंग के कागज़ों पर सूरह मरियम और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत तबा कराई जाती रहीं। अमेरिकी होटलों में टॉयलेट पेपरों पर अरसे तक उलमाए दीन की तस्वीरें छपती रहीं। जूतों और चप्पलों के तलवों पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम कुंदा किया जाता रहा। पैंटों और टी शर्टों पर ला इलाहा इल्लल्लाह की इबारत लिखी जाती रही। मुसलमानों की किरदार कशी के लिए टीवी और अखबार के जरिए गंदी तस्वीरें शाये करके बेहयाई को फरोग दिया जाता रहा। बैंकों पर कब्जा करके माशियात के नाम पर सूदखोरी और हराम खोरी को जिंदगी का जुज़े लायन फक बना दिया। आज़ादी निस्वां के नाम पर औरतों को बेपर्दा किया जाता रहा। औरतों के मसले इमामत को छेड़कर बेजा मसावत का नारा लगाया जाता रहा और इस्लामी तालीमात पर एतराज़ करने के लिए मुस्तशरिकीन की जमात को मुहक्किकीन की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया। मेरे अजीज़ दोस्तों, सलीबी और सहीयूनी साजिशों का सिलसिला इसी पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने और उन्हें बेहिस बनाने के लिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतअद्दिद फिल्में बनाई गई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी ज़िंदगी पर द मसीह नाम की एक फिल्म बनाई गई और क़यामत के हौलनाक मनाजिर को पेश करने के लिए और इस्लामी जज़ा और सज़ा को बदतरीन साबित करने के लिए द एंड ऑफ टाइम नाम की एक फिल्म बनाई गई और कुरानी अहकाम को खिलाफ फितरत बताने के लिए द होली कुरान नाम की एक फिल्म बनाई गई और इस्लामी अहकाम का मजाक उड़ाने के लिए फितना नाम की एक फिल्म बनाई गई। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इन तमाम बातों के बावजूद मुस्लिम और ख़ासकर अरब दुनिया ने अपने दामन को मगरिबी तहजीब और मगरिबी मीडिया के लिए फैलाए रखा और उनकी सकाफत को कामयाबी का तमगा समझकर उसे अपने सीने से लगाते रहे और उनके हल्के गुलामी को अपने गले में डालकर उसे अपने लिए बाइज़ सब्द इफ्तिखार समझते रहे। मुसलमानों की इसी ज़बू हाली को देखकर मौलाना शाह ज़फ़र अली खां मरहूम ने कहा था कि गैरों की गुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, गैरों की गुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुसलमानों की रूहानी ताकत को कमज़ोर करने के बाद सलीबी और सहीयूनी अफरीतों का दूसरा हदफ मुसलमानों की मादी ताकतों को तबाह व बर्बाद करना था। चुनांचे यूँ तो 29वीं सदी में यहूद ने तस्खीर आलम और अजीम तर इसराइली रियासत के क़याम का मंसूबा बना लिया और उसी पर किसी कदर अमल दरामद भी शुरू कर दी थी। लेकिन सन 1967 में यहूदी रहनुमा थेवड हर्जल ने स्विट्ज़रलैंड के शहर बाल में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें 50 मुख्तलिफ यहूदी तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले 300 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की और इस मंसूबे को 24 दस्तावेज़ की शक्ल दी। कॉन्फ्रेंस के बाद यहूद ने अपने इस मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। दरिया उर्दुन को पार करके फ़िलिस्तीन की जानिब अपनी आबादियाँ बढ़ानी शुरू कर दी और सन 1948 में तक़सीम फ़िलिस्तीन करके इसराइली रियासत कायम की। यह यहूदी मंसूबों का पहला तीर था जो दुनियाए अरब के सीने में घोंपा गया था। सन 1313 हिजरी में यहूद ने खिलाफत उस्मानिया को इल्हादियों से टकरा कर पहले खिलाफत की धज्जियाँ उड़ा दी और खिलाफत को जमहूरियत में तब्दील कर दिया। सन 1917 में समरकंद बुखारा में इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की एक ऐसी तारीख मुरतब की गई
जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरवरी सन 1969 में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को ईरान के इक़्तिदार से उतारकर खुमैनी को सदर बना दिया गया और इस तब्दील हुकूमत को इस्लामी इनकलाब का नाम दिया गया। खुमैनी ने अगर एक तरफ ईरान में मुसलमानों की खूनी नदियाँ बहाई तो दूसरी तरफ इराक से 7-8 साल तक जंग जारी रखी, जिसके नतीजे में पूरी खलीज यहूद व नसारा के कब्जे में चली गई। लेकिन फिर भी इस्लाम के काफ़िले आबला पाने इस्लाम के दिए को कहीं अपनी जाँफशानी, कहीं अपने इश्क व वफ़ा की हरारत और कहीं अपने खून जिगर से जलाए रखा और जाते जाते दुनिया को ये बता गए कि भुला सकेंगे न अहले ज़माना सदियों तक, भुला सकेंगे न अहले ज़माना सदियों तक मेरी वफ़ा, मेरे इश्क व जुनू के अफसाने। और आज भी इन अहले जुनू की तुरबतों से आने वाली ये सदा अहले दिल को सुनाई देती है कि जहाँ जहाँ नज़र आए तुम्हें लहू के चराग, जहाँ जहाँ नज़र आए तुम्हें लहू के चराग। मुसाफिराने मोहब्बत हमें दुआ देना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब छठे मुसाहिम की हैसियत से शाह अख्तर अरबी सोम को दावत देता हूं कि मौसूफ तशरीफ लाए। मौसूफ की तकरीर का उन्वान आज तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व इत्बाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। इज़्ज़त इमाम सदर मुहतरम व दरदान मिल्लत उलमाए कराम और सामईन जलसा, इस रूह परवर इनामी मुसाबका में लमकुशाई की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, मगर इसका में इल्म बेबदाअत को इस बात का भी एहसास है कि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत खूब नहीं है, कि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत खूब नहीं है, शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। मैंने किसी दिल का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया, मैंने किसी दिल का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मौदू का ताल्लुक इस इजलास के हर फर्द से है, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया से है। और उन्वान भी क्या है, आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। गोया अपनी ही दास्तान अपनों को सुना रहा हूँ, अपने ही जख्म पर नश्तर चला रहा हूँ। इस दास्तान के अंदर फख्र नाज के लम्हात भी आएंगे, रंजो गम के बादल भी छाएंगे, कहीं जोशो वलबला भी पैदा होगा, कभी एहसास नदामत भी होगा, तलख हकायक भी होंगे, शीरी कलामी भी होगी, मादी की ताबनाकी भी होगी और हाल की तारीकी भी होगी, क्योंकि मुसलमानों का उरूज ज़वाल का बयान है। आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, कि आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। शमसीरो सना अव्वल ताबूसो रबाब आखिर, दानिश्वरान मिल्लत ये शेर कौमों के उरूज ज़वाल की पूरी तारीख सुना रहा है। शमसीरो सना अव्वल का ताल्लुक उरूज इर्तिका से है, तो ताबूसो रबाब आखिर का रब्त ज़वाल इन्हितात से है। मुसलमानों ने ये दोनों दौर देखा है, बल्कि दौर सानी से भी दो चार है। आप अक़वाम आलम की तारीख उठा कर देखिए कि इस दुनिया में इन्हीं कौमों ने उरूज इर्तिका की बुलंदियाँ हासिल की, और जिन इन कौमों ने अज़्म हौसला, मेहनत व मुशक्क़त और करेज़ी और जफाकशी के साथ तरक्की की, शाही राहों को तय किया, अपने उसूल व क़वानीन और दस्तूर शरीयत से इन्हिराफ नहीं किया, अपनी फितरत को बाकी रखा, अपने खालिक व मालिक को फरामोश नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फतह व नुसरत के दरवाजे खोल दिए, उन पर खैरात व बरक़ात के दरवाजे खोल दिए, उनको सर बुलंद कर दिया, उनको अज़मत वाला बना दिया, उनको क़यादत व इमामत के मनसब पर फायज किया, हुकूमत व सल्तनत से नवाज दिया। और जब इन कौमों ने दौलत व सरवत और इक़्तिदार व हुकूमत के नशे में अपने पान नहार से बगावत की, खुदाई दस्तूर से इन्हिराफ किया, किब्र गुरूर का शिकार हुए, लज्जत कोशी राहत तलबी आराम पसंदी में मुब्तला हो गए, जिहाद फी सबीलिल्लाह के बजाय रक्सो सुरूर में गर्क हो गए, शमसीरो सना रख्ता वुसो रबाब उठा लिया तो फिर जवाल की घाटियों में गिरती चली गई। बरादराने मिल्लत,
जो अरब इस्लाम से कबल आपस में मुतहारिब थे, अब वह मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बन गए। इन्होंने ईमान की लज्जत, इस्लाम की हलावत पा ली थी जब वह पैकर इताअत बन गए, खूगर इबादत बन गए, आशिक़ रसूल बन गए, तालिबे जन्नत बन गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फतह व नुसरत के दरवाजे खोल दिए, शान व शौकत के दरवाजे खोल दिए, उनको सर बुलंद कर दिया, उनको अज़मत वाला बना दिया, उनको क़यादत व इमामत के मनसब पर फाइज किया, हुकूमत व सल्तनत से नवाज दिया, क़द्र व मंजिला से सरफराज किया, दौलत व सरवत से मालामाल किया, कामयाबी व कामरानी से हमकिनार किया। इसलिए कि इन्होंने ईमान के जरिए अपना रिश्ता अपने खालिक व मालिक से जोड़ लिया था, अपने परवरदिगार के अता करदा दस्तूर को मजबूती से थाम लिया था। कुरान उनका दस्तूर जिंदगी बन गया था, रसूलुल्लाह उनके उस्वा नमूना बन गए थे, अल्लाह की रज़ा उनकी आरज़ू बन गई थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो बहुत बड़ी कामयाबी से सरफराज हो गया। और इससे बढ़कर और कामयाबी क्या होगी कि दुनिया ने उनके सामने सर झुकाया, इक़्तिदार ने कदम बोसे की, दरियाओं ने रास्ता दिया, हवाओं ने उनका हुक्म माना और दरिंदे ने उनकी इताअत की। और रोम फारस से लेकर चीन, स्पेन और अफ्रीका तक उनका रुब व दबदबा कायम हुआ। ये सब कुछ इसलिए था कि वह कुरानी इंसान थे, वह रब्बानी मुसलमान थे, वह मुहम्मदी थे, और कुरान ही उनके उरूज इर्तिका का महवर मरकज है, और कुरान ही सरचश्मे हिदायत है, और कुरान ही उनको, और कुरान ही के जरिए अल्लाह तबारक व तआला कौमों को सरबुलंद करता है और उसको छोड़ने की पादाश में दलीलो खार करता है। और कुरान ही के बारे में रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इस पर अमल पैरा होगे भटकोगे नहीं। एक अल्लाह की किताब कुरान है, दूसरे उसकी रसूल की सुन्नत है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा, वह मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। मुफ़क्किरान इस्लाम मुसलमानों ने 1300 साल तक दुनिया की क़यादत व इमामत की, और अपने तहज़ीब व तमद्दुन और अपने खदारत और अपने तहज़ीब व तमद्दुन और हज़ारत व सक़ाफ़त को हर जगह पहुँचा दिया। दुनिया को गहवार अमन बनाया, दुनिया को गुलशन मोहब्बत बनाया। इस्लामी दौर इक़्तिदार में दुनिया ने अमन और राहत का, अदल इंसाफ का, इत्तिहाद व मसावात का, हमदर्दी व रवादारी का, खैर खाई व गमगुसारी का, इल्म फ़रोग़ी व इंसानियत नवाजी का जैसा मुकम्मल मुशाहिदा किया। इसकी नज़ीर नहीं मिलती अहद नबवी हो कि अहद सहाबा हो, असर उमवी हो कि असर अब्बासी हो, दौर सल्जुकी हो कि दौर अय्यूबी हो, दौरे सल्जुकी हो या अय्यूबी हो। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों ने ज़माम इक़्तिदार संभाला, उस जगह और उस इलाका को रश्क इल्म बनाया। मगर जब खुद मुसलमानों ने अपने अंदर खराबियाँ पैदा कर ली, बुराइयाँ पैदा कर ली, कुरान को ताक़-ए-निस्या पर सजा दिया, हदीस व सुन्नत से रब्त व ताल्लुक़ तोड़ लिया, मोहब्बत रसूल सिर्फ नारा बन गया, इस्लाम सिर्फ लेबल बन गया, दीन सिर्फ अलामत बन गया, ईमान कमज़ोर हो गया, अमल सालेह न रहा, सलाह तक़वा न रहा, अखलाक हसना न रहा, किरदार की बुलंदी न रही, इबादत की चाशनी न रही, इताअत का जज्बा न रहा, दुनियादारी आ गई, खुद फरामोशी हो गई, खुदा शनासी हक परस्ती न रही, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमको फरामोश कर दिया, हमको छोड़ दिया, हमसे हाथ उठा लिया। फिर वही मुसलमान जो कल तक हाकिम व गालिब थे, आज महकूम व मगलूब है। जो तख्ते शाही पर थे, आज फर्श खाकी पर हैं। जो बहरे दुलमात में घोड़े दौड़ाते थे, हवाओं से पैगाम रसानी करते थे, और लड़ाई में नमाज अदा करते थे, मैदान जंग में तराने वहदत सुनाते थे, दुनिया की क़यादत करते थे, कौमों की इमामत करते थे, जिल्लत व पस्ती में गिरते चले गए, और दिन ब दिन रूह ब ज़वाल है। मायूसी व एहसास कमतरी का शिकार है, बदहाली व खस्ता हाली से दो चार है। उनकी इज्जत की दास्तां किसे पारी ना बन गई, उनकी शौकत की कहानी औराक में दब गई। इसलिए कि हमने अमलन दीन से बगावत की, अमलन अल्लाह से बगावत की, अमलन रसूल से बगावत की। हमारे पास सिर्फ अक़वाल है, अफ़आल नहीं, फ़लसफ़े हयात है, तलक़ीन गज़ाली नहीं।
मालो दौलत है, मालो दौलत है सार उस्मानी नहीं, हुकूमत और सल्तनत है अदल फारूकी नहीं, तो फिर ज़वाल व इन्हितात नहीं तो और क्या हाथ आएगा। मगर इस्लाम आज भी हमको ज़िंदगी की बशारत देता है, अज़मत और शौकत की दावत देता है। बस शर्त यह है कि इस्लाम और कुरान से अपना टूटा रिश्ता बहाल कर ले, कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुसाहिम नंबर 7 की हैसियत से रशीद अहमद को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं। मौसूफ की तकरीर का उन्वान जहेज़ एक जरासीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, कि बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फ़ख्र से, बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फ़ख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज़ का। यूरोप के थे जो अहले दिल अहले ज़र, यूरोप के थे जो अहले दिल अहले ज़र, देते थे बेटी को मोटर खरीद कर, और हिंदुस्तान की शान इमारत तो देखिए, देता है बाप बेटी को शौहर खरीद कर। स्टेज पे बैठे उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े कराम और हाज़िरीन मजलिस, आज के दौर में जो हालात हमारे सामने हैं और मुआशरे की सही तस्वीर जो हमारी नज़रों से दिखाई दे रही है, इन हालात को देखकर इंसान अपने आप को खौफज़दा महसूस करता है और ये कहता है कि ऐ मेरे मौला, हम किस इंसानियत के चमन में डूबे हैं या किसी दरिंदे के चुंगल में, कि हमारे लिए एक एक लम्हा ज़िंदगी का गुजारना दुश्वार नज़र आता है। क्या वजह है कि आज एक इंसान इंसान से डरता है? समझ में नहीं आता कि आज इंसान की शक्ल में ये दरिंदे कहाँ से जन्म ले लिए हैं। इन दरिंदों ने शैतान को भी शर्मिंदा कर दिया है। मुहतरम सामीईन किराम, बहुत ही अफसोस और हसरत का मकाम है कि आज दौरे जाहिलियत की तारीख दोहराई जा रही है। जिस तरह से दौरे जाहिलियत में लड़कियों के पैदा होते ही बाप के चेहरे खुश्क हो जाया करते थे, ठीक उसी तरह से आज भी अगर किसी के घर बच्चियां पैदा हो जाती हैं, प्यारी लाडली खूबसूरत बेटी जन्म लेती है, तो बाप के चेहरे जर्द हो जाया करते हैं और सोचो फिक्र की एक कैफियत तारी हो जाती है। और बाप कहने लगता है कि अब क्या होगा इसके जहेज़ का, हम खुद ही फ़कीर हैं तो इसको जहेज़ में क्या देंगे। और खुद वो लड़कियां जब पैदा होती हैं, मुआशरे के अंदर अपनी आंखें खोलती हैं, हालात का जायज़ा लेती हैं, माहौल के रंगो रूप को देखती हैं, तो बेचारी सोचने पर मजबूर हो जाती है और ये कह पड़ती है कि अगर मैं इतनी ही जलीलो ख़ार थी तो रब्बे कायनात ने मुझे क्यों पैदा किया, अगर मैं इतनी ही हकीर थी तो खालिक अर्ज़ व समा ने मुझे क्यों ज़िंदगी बख्शा, मुझे क्यों दुनिया में भेजा, अगर मैं वालिदैन के लिए बोझ थी तो मेरा जन्म क्यों हुआ, अगर मैं जला देने और नज़र आतिश कर देने के काबिल थी तो मुझे ज़िंदगी क्यों बख्शी। बेचारी सोचती रह जाती है और यह कह पड़ती है कि ए काश में दूसरी मखलूक होती, ये तो रुसवा कुन हालात मुझको और मेरे वालिदैन को नहीं देखने पड़ते। मुहतरम सामीईन किराम, जब हम हालात का जायज़ा लेते हैं और अखबार और रसायल का मुताला करते हैं तो हमारी मासूम बहनों के खून के छींटे सह सुर्खियों पर नजर आएंगे, उनको जिंदा जला देने की वो महसूस होगी, उनकी चीता की खौफनाक तस्वीर दिखाई देगी, उनकी चीखों पुकार सुनाई देगी, आहो बका और सिसकियों की सदाएं सुनाई देंगी, झील जैसी आंखों में आंसू के कतरात बहते और गिरते नजर आएंगे। जब हम इन तमाम रिपोर्ट को पढ़ते हैं और इन जली हुई तस्वीर को देखते हैं तो दिल ये पूछता है कि उनका क्या जुर्म था, उनका क्या गुनाह था, उन्होंने क्या पाप किया था, किस जुर्म के बदले उनको नजर आतिश कर दिया गया। लेकिन फिर भी इन फाड़ खाने वाले दरिंदों की शक्ल में ये इंसानी रूप कहाँ से जन्म ले लिए हैं कि किसी फूल जैसी मासूम लड़की पर पेट्रोल छिड़कते हुए और आग लगाते हुए तुम्हारे दिल में सवाल नहीं उठा। जिस तरह से तुम अपनी बहन से मोहब्बत करते हो, वो भी तो किसी के दिल का टुकड़ा है, वो भी तो किसी की लख्त जिगर है, वो भी तो किसी के दिल की धड़कन है।
उस मासूम सी जिंदगी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसको मौत के दलदल में उतार दिया गया। मेरे भाइयों, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी बहनें और बेटियां शादी होते ही बेघर क्यों कर दी जाती है? उनको गाली का तोहफा क्यों पेश किया जाता है? उनको सख्त और सुस्त क्यों कहा जाता है? उनको मारा पीटा क्यों जाता है? उनके सीने पर चढ़कर छुरी क्यों चलाई जाती है? उन्हें माँ की ममता से दूर क्यों कर दिया जाता है? वजह इसकी सिर्फ यही है कि कुदरत ने उसको जिस गोद का सहारा अता किया था, जिस बाप की शफकत से नवाजा था, जिस माँ की ममता से नवाजा था, उस बाप ने उसके जवान होते ही शादी तो कर दी, लेकिन साथ में जहेज का सामान नहीं दिया। इस वजह से सामान नहीं दिया कि लोग तुम्हें शरीफ समझते थे, एक अच्छा इंसान तस्वूर करते थे। गली गली चलने वाला भी तुम्हें इंसानियत के नज़र से देखता था कि तुम एक भोले भाले अच्छे इंसान हो। वो ये नहीं समझा कि तुम एक शिकारी कुत्ते हो, एक फाड़ खाने वाले दरिंदे हो जो झोपड़ी से महलों तक खाकिस्तर कर देते हैं। जब वो गरीब अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ में देता है, उस वक्त अगर मजबूर जानता कि तुम जंगल के दरिंदों से भी बदतर हो या भिखारी हो, तो शायद वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कभी न देता। वो तुम्हें इंसान समझता है और जानता है कि तुम्हारे सीने में एक इंसान का दिल है। शायद तुम इंसान होने के नाते इंसानियत के तमाम फराइज अंजाम दोगे। शायद तुम धड़कते हुए दिलों की धड़कनों को समझ सकोगे। शायद तुम बूढ़े लाचार माँ बाप की तड़प का एहसास करोगे। वो तुम्हें इंसान की औलाद समझकर अपना दामाद बनाया है और अपनी बेटी का हाथ तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर दिया, और तुम उसी के सिले में उसकी फूल जैसी लड़की पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हो, और तुम उससे मुतालबा करते हो कि अपने माँ बाप के घर लौटकर मेरे घर को बसाओ और उस बूढ़े बेबस की कमाई से मुझ नौजवान के सर पर ताज पहनाओ। मेरे भाइयों, पहली बार इंसान को एहसास होता है कि इंसान की शक्ल में कोई जानवर था, या इंसान की शक्ल में कोई डाकू था, या इंसान की शक्ल में कोई शिकारी कुत्ता था, जिसके हाथ में एक मासूम लड़की को दे दिया गया। कि अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, कि अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते। ये हादिसे तो वो हैं जो सुनाए नहीं जाते। मेरे इस्लामी भाइयों, क्या तुम हालात का जायजा नहीं लेते? क्या तुम माहौल के रंग और रूप को नहीं देखते कि सिर्फ तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से मुआशरे के रुझानात किस कदर तब्दील हो चुके हैं, अखलाकी हैसियत से किस कदर बिगाड़ पैदा हो चुका है, दीनी हैसियत से क्यों दूरी होती चली जा रही है, माल की हिर्स किस कदर बढ़ चुकी है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों को कमतर और हकीर समझा जा रहा है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से मशीयत इलाही को चैलेंज किया जा रहा है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से निकाह एक महंगा सौदा बन चुका है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से नौजवान ज़हनी कशमकश और अदम एतमाद की कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से गरीब घराने में लड़कियां बगैर शादीशुदा रह जाती हैं और नफसानी उलझनों का शिकार हो जाती है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से बेगुनाह और पाकदामन लड़कियों की असमती दागदार की जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन तमाम हालात के बिलाशुबह तुम ही जिम्मेदार हो। सारी चीज़ों के मुताल्लिक तुम्हीं से सवाल किया जाएगा। इसलिए हर शख्स से फैसला करे और तहैया करे कि ना जहेज लेंगे और ना जहेज देंगे। कुरान के इरशादात गली गली पहुँचाएंगे, नबी के इरशादात का नमूना दिखलाएंगे ताकि दुनिया हैरत से देखती रह जाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।